everyone and welcome to the next video. Today we are going to learn type 11. Type 11, like in derivatives, we have product rule when दो function multiplication में होते हैं. When we talk about integration, we apply the logic of integration by parts. That means कोई भी दो फंक्शंस हैं उनको आप u और v कंसिडर कर लो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे. फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द second function, that is v dx, minus whole integration derivative of the first function into integration of the second function. क्योंकि whole integration है इसलिए एक dx आएगा plus c. So this is the basic formula of ILATE. अब इसमें ट्रिक है कि u और v सेव आपको कैसे पता चलेगा कौन से फंक्शन को u लेना है कौन से को v लेना है. So I want you to use this logic of ILATE. I have already given the full form. I stands for inverse function, L for logarithmic, A for arithmetic, T for trigonometric, E for exponential. तो basically इस order में आप U और V apply करोगे. जो पहले आएगा उसे u लेंगे और जो बाद में आएगा उसे v लेंगे. सपोज करिए इनवर्स और एल्जेब्रिक है तो दिस इज u, दिस इज v. सपोज करिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक आया तो log will be u and trigonometric will be v and so on. Okay, so now suppose you forget this, तुम्हें याद ही नहीं है कि आइलेट क्या होता है, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि हम उसको u लेंगे जिसका हम उसको v लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान है. सो v will be taken as that value whose integration is easy. बिकॉज डेरिवेटिव तो हम किसी का भी कर सकते हैं. डेरिवेटिव इज more simple as compared to integration is concerned. Now let's move on to the logic where this can be used. This logic can be very clearly used in 7.6 exercise. Suppose let me do a easier question for you first to explain you the logic, and then we will move on to little tougher ones. Like first question, ILATE. So if you have a look here, this is a algebraic function, children, and this is a trigonometric function. So A and U and V. So formula of integration by parts क्या होता है? U as it is integration of the second function minus whole integration derivative of the first function into integration of the second function whole dx plus c. So let's apply. X as it is integration of sin x dx minus whole integration d by dx of x into integration of sin x dx plus c. तो करते हैं x sin का डेरिवेटिव cos, अगेन बहुत साइन का इंटीग्रेशन कॉस. अगेन याद रखना है सारे जिसके आंसर सी में आते हैं उसके साथ नेगेटिव साइन आता है इंटीग्रेशन में. सो माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x1 और इसका अगेन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस सी. सो फाइनल आंसर माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी. So this is your final answer of question number 1. Similarly, इसमें भी आप u and v लेंगे क्योंकि algebraic function है और trigonometric function है. इसमें algebraic and exponential है तो this is u, this is v. Similarly, algebraic and log है. Algebraic log पहला function u and this is v. Again u and v. Again this is u, this is v. Inverse के केस में इनवर्स वन विल बी टेकन एज u क्योंकि i पहले आता है, v, और वैसे भी आप ऐसे भी याद रखो कि इनवर्स की तो इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि जो इनवर्स के साथ जो भी फंक्शन होगा उसी को आपको v लेना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे. ओके, सिमिलरली दिस इज u, दिस इज v, अगेन u v. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? Suppose we have to do question number 10, children. Let me erase this one for you, first one, and let's start 10. Again, I'm using the same logic
ऑफ आइलेट, आई विल शो यू हाउ। हालांकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं इसमें तो मुझे एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन देखा जाए तो एक ही फंक्शन नहीं है। आई कैन ऑल्सो राइट एनीथिंग इन टू वन, you know that anything into one is the function itself. So that is how, up again, inverse, this is u, this is v. So inverse function as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1x आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आएगा बेटा, 2 sin inverse x into chain rule, derivative of sin inverse x, that is 1 minus x square into again integration, that is x dx plus c. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ अगेन हम फंस गए। अब चेक करिए, आपको दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट है। सो कैन आई पुट साइन इनवर्स x एज t, सो आई गेट 1 upon under root of 1 minus x square dx is equal to dt. So चेक करिए ये क्वेश्चन मेरा कैसे रिड्यूस हो गया। x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हट चुका है, ये एज इट इज रहेगा, माइनस 2 1 upon dx upon under root this becomes dt, राइट? ये तो dt हो गया। साइन इनवर्स x की वैल्यू t आ गई। अब रहा ये x की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। कैन आई से x इज sin t children, so this is sin t. Now again the way we did question number 1, x sin x, again हम इसमें बाय पार्ट्स फिर दोबारा से लगा देंगे। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दिस इज u, दिस इज v, the way we did the first question I want you to complete, but let me do it because there's a catch in the final answer जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या है वो कैच, देखते हैं। लेट्स अप्लाई आइलेट अगेन। अब मैं अगेन जल्दी आइलेट अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस, माइनस ऑफ माइनस माइनस, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी जो कि 1 है, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस जो कि माइनस कॉस टी डी टी है, तो ये प्लस हो गया। c ऑलरेडी एक बार आ ही चुका है, तो हम वापस c नहीं लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है। सो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t cos t, इंटीग्रेशन ऑफ cos साइन होता है, तो माइनस 2 sin t प्लस c। अगेन इफ यू रिमेंबर वेरी क्लियरली द लॉजिक, t कभी भी आंसर एक थर्ड वेरिएबल में नहीं छोड़ते, जिसमें क्वेश्चन पूछा है उसी वेरिएबल में आंसर छोड़ना है। तो द फाइनल आंसर हम t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की जगह साइन लिख देंगे। सो फाइनल आंसर कैसे आएगा, लिखते हैं यहाँ पे। आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर सो दैट यू नो दैट मैंने यहाँ से क्वेश्चन यहाँ शुरू किया है। सो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर एज इट इज प्लस, अच्छा ये स्क्वायर मैंने गड़बड़ लिख दिया था, प्लस 2 साइन टी कॉस ऑफ टी इज, sorry, this is t is sin inverse x children, sin inverse x, cos of again sin inverse x minus 2 sin of again t sin inverse x plus c। अब मैं आपको इसका एक सिंप्लीफिकेशन बता रही हूँ, जो कि बहुत बच्चे जिसमें गलती करते हैं। प्लस 2 साइन इनवर्स x, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां बच्चे फंस जाते हैं। कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स होता तो हमारा आंसर जो भी एंगल है वो आ जाता, वो सिंप्लीफाई हो जाता। जैसे कि इसका आंसर है साइन ऑफ साइन इनवर्स x का आंसर ये आ जाएगा प्लस c, लेकिन इसका नहीं आएगा डायरेक्टली, तो इसे कैसे करना है। अब मैं चाह रही हूं कि आप साइन इनवर्स x को कोई p ले लो, तो कैन आई से साइन p इज इक्वल टू x बाय 1, क्योंकि ये उधर चला गया तो x बाय 1 आ गया। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज x k, hypotenuse is 1k, so can I say base is under root of 1 minus x square, right?
ऑब्वियसली क्योंकि के भी साथ आएगा, राइट, के बाहर आ जाएगा रूट के, तो कॉस पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? कॉस पी आएगा बेस जो कि है दिस अपॉन हाइपोटेनस जो कि है 1 के कैंसिल हो गया, तो दिस इज द कॉस पी वैल्यू. सो कैन आई से पी is equal to cos inverse of under root 1 minus x square. So this is what we will learn. Cos of cos inverse under root of 1 minus x square, क्योंकि मैंने इसको p लिया था, राइट, और अब भी मैंने p की वैल्यू निकाली है, लेकिन पहले मेरे पास p की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म में थी, अब मेरी p की वैल्यू cos इनवर्स के टर्म में आई है. तो cos और cos इनवर्स अब सिंप्लीफाई हो जाएंगे और इसका आंसर ये आएगा. तो यानी कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज माई सिंप्लीफाइड आंसर. I hope now you will understand. And from where I've got this logic is from the inverse trigonometric chapter. Right, children? So please don't make any mistake in question number 10. All right. Let's move further. In 11 also there is nothing to worry about. Question थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कि मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स दिख रही हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा. cos इनवर्स x t, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, और क्योंकि ये वाली टर्म क्वेश्चन में प्रेजेंट थी इसीलिए मुझे पता चला कि यहाँ सब्सटीट्यूशन लगना है. तो यू हैव टू रिमेंबर अगेन, इस पूरे की जगह तो माइनस डी टी आ गया जो कि माइनस साइन बाहर चला गया. कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी आ गया. अगेन यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू फिर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू सॉरी, विच इज कॉस टी. अब आपका क्वेश्चन ये टाइप इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया जो कि आप नॉर्मल सॉल्व कर लोगे यूवी लेके. अगेन इसमें अगर आइलेट लगाएंगे, राइट, अगेन एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो u एंड v लेंगे, राइट. अब इनवर्स में अगेन इनटू 1 ले लेंगे, तो इनवर्स दिस विल बी टेकन एज u एंड दिस 1 विल बी टेकन एज v. अगेन सिमिलरली इसमें भी लॉग है और x है, तो x log L पहले आता है, this is u and this is v. Similarly here also log and this is there, algebraic is there, so u and v. Now this is another exercise. We will move on, we will continue in the next type, okay, and we will move on, but this is a hot question which I will discuss right now. Again, question number 21 is very very important. What is important here? 21 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x. अगेन चेक करो, अगर मैं इसमें आइलेट लगाऊं, आइलेट, राइट, अगेन इसमें e फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो u v, लेट्स अप्लाई आइलेट. सो u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x is e to the power 2x by 2. डोंट फॉरगेट दिस 2 बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन में अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा आता है जब भी एक्स की जगह कुछ और वैल्यू होती है, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, राइट चिल्ड्रन, इनटू इंटीग्रेशन e to the power 2x अपॉन 2 dx प्लस c. अब अगेन चेक करिए, अभी भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है बेटा. क्यों? क्योंकि अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल वापस आ गए हैं, तो मैं हाफ कॉमन लूंगी एंड अगेन इसमें cos x e टू द पावर 2x dx में मैं फिर दोबारा से uv लगाऊंगी. अगेन दिस इज u, दिस इज v. नाउ let's do the question again. E to the power 2x sin x by 2 as it is minus half first function as it is, cos x as it is, integration of e to the power 2x which is e to the power 2x by 2 minus whole integration derivative of cos x. So derivative of cos x is sin x, right, into डेरिवेटिव ऑफ सारे c जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, आई होप तुम्हें याद होगा. सो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, राइट चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू रिमेंबर, इनटू अगेन इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x by 2
dx प्लस c। अब चेक करिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप आगे करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ आप अटकोगे। ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी थी, अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, तो ये माइनस माइनस cos x इंटू ई टू द पावर 2x बाय 4 हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन 1/2 इंटू 2 4 हो गया, ई टू द पावर 2x sin x dx प्लस सी। अब चेक करिए, ये तो क्वेश्चन लूप में चलता ही जाएगा। कैसे? पहले हमने ई एक्स साइन एक्स में फॉर्मूला लगाया था, आइलेट लगाया था, तो कॉस में आ गया था, फिर हमने कॉस में दोबारा से आइलेट लगाया, फिर वापस साइन में आ गया। इसका मतलब इस लूप को खत्म करने के लिए कैन आई टेक दिस क्वेश्चन एज आई? If this is the trick here, we have to take the question as I and we will say, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन का ही आंसर चल रहा है, तो I is equal to ही चल रहा है, तो we can say that this is also I. So can I say I is equal to, if I take e to the power 2x by 2 common, तो अंदर क्या रह गया? sin x minus cos x by 2, और इसको क्या मैं वापस I लिख सकती हूँ, और क्योंकि आगे 1/4 है तो 1/4 I प्लस सी। अब ये 1/4 I उधर चला जाएगा, तो I प्लस 1/4 I इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x बाई 2 sin x माइनस cos x बाई 2 प्लस सी। सो यहाँ पे क्या आया? 5i/4 equals to this e to the power 2x by 2 sin x minus cos x by 2 plus c. So ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। Can I say the value of I is 2 e to the power 2x by 5? अगर मैं एलसीएम ले लूँ 2, तो 2 sin x minus cos x by 2 plus c. सो दिस इज माई फाइनल आंसर। मेरा क्वेश्चन आई में था और मेरा आंसर भी आई इक्वल्स टू आया है, एंड इंटीग्रेशन साइन हट गया है। सो दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर वी अप्लाई आइलेट ट्वाइस। दिस इज द हॉट क्वेश्चन। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टाइप हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 and 22. I will get back to you on that. Okay, so keep watching, and if you still have any doubt, you can leave in the comment below, right? I can teach you question number 22 also, children. Right now it's not a very big deal. Okay, let me show you question number 22. A small hint I should give you, and then you will be able to pick up on your own. अब मुझे नहीं पता किसको ये फॉर्मूला याद होगा, बट आई होप यू पीपल रिमेंबर कि आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला करा था। 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is formula of sin 2 theta, children. So here I want just to remember, again it is a hot question. Again I want you to remember कि x की जगह हम tan theta पुट करेंगे। तो अगर मैं x की जगह tan theta पुट करूंगी बेटा, तो क्या हो जाएगा? dx is equal to derivative of tan theta is sec square theta d theta. So check करिए ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन। Sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta into dx की वैल्यू जो कि है sec square theta d theta. So this is integration of sin inverse of sin 2 theta sec square theta d theta. Sin inverse sin cancel हो गया, so 2 theta sec square theta d theta. Now you can use ILATE, ILATE, algebraic और trigonometry. तो ये u, ये v, and अब आप solve कर लोगे, right? We will get to the rest of the questions which are left in the next video. So thank you for watching.